Hello, good afternoon, student. Myself, Hiral Raval. Today we have learned chapter number 7 Conservation of Plants and Animals, Standard 8th, Subject Science. In previous lecture, we have studied what is sanctuary, what is wildlife sanctuary, biosphere reservoirs, then flora and fauna, एंडेमिक स्पेसिस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. Then 7.7 Wildlife Sanctuary. In this video we have studied wildlife sanctuary. Wildlife Sanctuary. Soon Paheli sees a broad board with Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmad explains that, like reservoir forests, wildlife sanctuaries provide protections and suitable living conditions of wild animals. Madhavji further explained that sanctuaries are places where killing or capturing of animals is strictly prohibited. जहाँ एनिमल्स है उसको हमें मारना नहीं है. Some of the threatened wildlife animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape level forest, mountain forest and bushlands in deltas of big rivers. हमारे इंडियन जो की बात करें तो उसमें जो है बिग डेल्टास जहाँ रिवर्स होती है वहाँ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए गए हैं. इट इज़ द pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protections. zoo ऐसी जगह है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्शंस मिलता है. तो यहाँ डिफरेंस के बारे में लिखा है. विजिट अ नियर बाय ज़ू. हमें नियर बाय ज़ू, नज़दीक जो ज़ू हो, यहाँ पे काकरिया है मणिनगर एरिया में, तो आप वहाँ जाके विज़िट ले सकते हो. ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स. कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. यहाँ लिखा है कि एनिमल्स को उसके आर्टिफिशियल सेटिंग मीन्स के जू में तो केज में रखा जाता है, वहाँ रखना अच्छा है कि उसके नेचुरल हैबिटेट पे रखना अच्छा है. इन योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट. एनिमल जू में कंफर्टेबल है या नेचुरल हैबिटेट में कंफर्टेबल है. तो ऑब्वियसली जो एनिमल होंगे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही कंफर्टेबल होंगे. देन 7.8 नेशनल पार्क. ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सातपुरा नेशनल पार्क. चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. Madhavji tells them that these reservoirs are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystems. They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. Satpura National Park is the first reservoir forest of India. The finest Indian teak is found in this forest. यहाँ पे इंडियन टीक जो है वो पाए जाते हैं. Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are evidences of prehistoric human life in these jungles. This gives us an idea of the life of primitive people.
Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmari Biosphere Reservoir. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing, and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. बहुत सारे ट्रिबल्स जो वहाँ पे रहते हैं, पेंटिंग्स बहुत सारे अवेलेबल हैं. As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reservoir written on it. Madhavji explained that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. टाइगर की पॉपुलेशन को वो कंट्री में धीरे धीरे टाइगर जो है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप कैन सी अ टाइगर. टाइगर्स अभी भी पाए जाते हैं. भुजो को ऐसा हो रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि उसको टाइगर देखने को मिलेगा. फिगर 7.4 में टाइगर का पिक्चर बताया है. टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. But the Satpura Tiger Reservoir is unique in the sense that significant increases in the populations of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lions and elephants, wild buffaloes and बारहसिंगा, यहाँ फिगर 7.6 में बारहसिंगा दिखाया गया है 5 में, were also found in the Satpura National Park. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinctions are known as the endangered animals. भूजो, ये बारहसिंगा का पिक्चर है और ये वाइल्ड बफेलो का पिक्चर है. भूजो remembered of the dinosaurs which became existence a long time ago. Survival of some animals has become difficult because of disturbances in this natural habitat. बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं, उसको डिफ़िकल्ट क्योंकि डिस्टर्बेंसेस नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, इसके लिए एनिमल्स को अच्छा नहीं लगता है. आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शंस? क्या ओनली बिग एनिमल्स ही धीरे धीरे कम हो रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. छोटे जो स्पेसीज है वो भी धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है. Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times we will snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. भले छोटे एनिमल्स हो, बराबर छोटे एनिमल्स है, वो भी एनवायरनमेंट में उसका भी कोई पोजीशन है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो वो, बराबर. They form part of food chains and food webs about which you learnt in class 7. क्लास 7 में हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा था. फूड चेन प्रोड्यूसर्स से लेके लास्ट में कार्निवर्स तक फूड जो चेन थी, और फूड वेव्स का डायग्राम हमने देखा था. एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river और deltas etc. इकोसिस्टम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. आई वंडर इफ़ देर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ एनलार्ज रेसिस. उसको ऐसा हुआ कि ऐसे एनिमल्स होंगे, उसका कोई रिकॉर्ड के लिए कोई बुक होगी, तो यस, रेड डेटा बुक. प्रोफेसर अहमद explains about Red Data Book to the children. He tells that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the enlarged animals and plants. There are different Red Data books for plants, animals and other species. For further details about Red Data Book, you can log on to www.wil.government.in
Envis dash Primitis page 102 HTM न्यू NWSC प्लांट्स HTM। ये जो है आप जो है वो गूगल पे सर्च करना तो आपको रेड डेटा बुक के सारे जो पिक्चर्स है कौन कौन से एनिमल्स रेड डेटा है वो आपको पता चल जाएगा। रेड डेटा बुक में किसका कौन से एनिमल्स प्लांट्स का जो नेम है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, देन 7.10 migrations. The excursions party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the tawa receiver to relax for some time. Paheli observes some of the birds near the river. Madhavji tells the children that these are migratory birds. तो ये migratory birds की बात की है। These birds have flown here from other parts of the world. Migratory birds fly to far away areas every year during the particular time. Because of climatic changes, they fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cool and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are known as a migratory birds. As Paheli learned in class 7. क्लास 7 में माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। जो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर सीज़न में दूर से यहाँ पे आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। 7.11 Recycling of paper. Professor Emma draws attentions of the children to another cause of deforestation. He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 tons of paper. Therefore, we should save paper. Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should save, reuse used paper and recycle it. By this, we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. ओके, पेपर का हमें इस्तेमाल कम करना चाहिए। हमें अभी आज के ज़माने में तो क्या है, सब इको फ्रेंडली हो गया है। हम एक पेड़ कट करेंगे तो जिससे 17 फुल टन ग्रो ट्रीज मेक अ 1 टन पेपर, तो 1 टन पेपर उससे बनता है। तो वजह तो बहुत सारे ट्रीज कट हो रहे हैं, तो हमें ट्रीज को बचाना है। इज़ देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। धीरे धीरे जंगल बढ़ते ही जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए, फैसिलिटी के लिए बहुत सारे जंगल फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, लकड़ियों के लिए कट कर रहे हैं। तो वो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट भी धीरे धीरे छीना जा रहा है। 7.12 topic Reforestation. Professor Emma suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which were found in the forest. We should plant at least as many trees as we cut. हम जितने ट्रीज कट करते हैं उससे ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना चाहिए। एटलीस्ट जितने कट करते हैं उतने तो हमें ट्रीज ग्रो अप करने ही चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ द डिफॉरेस्टेटेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, it re-establishes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green weather, our future generation plantations of more trees is the only option. Professor Ahmad told them that in India we have the Forest Conservation Act
हमारे इंडिया में तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक्ट है. दिस एक्ट इज एम टू preservations and conservations of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back. माधव जी ने बोला कि अभी हमारे वापस जाने का टाइम हो गया. इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद जंगल में रहना एडवाइजेबल नहीं है. ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडेंस देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. तो वो क्या करते हैं, उनको थैंक्स करते हैं. ये कीवर्ड्स है वो आपको लिखने हैं ना. बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट कीवर्ड्स है बायोडाइवर्सिटी. देन बायोस्फीयर रिसीवियर, डिफॉरेस्टेशंस, देन डेजर्टिफिकेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स के फॉरेस्ट हम धीरे धीरे फॉरेस्ट कट हो रहा, फॉरेस्ट ज़्यादा फैल रहा है ना. डिफॉरेस्टेशन जंगल कट करते हैं. डेजर्टिफिकेशन मीन्स के डेजर्ट हो रहा है ज़्यादा. देन इकोसिस्टम्स, एंडर्ड स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज, देन एक्सटिंक्ट फोना फ्लोरा, माइग्रेटरी बर्ड्स, नेशनल पार्क, रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक को जो गूगल में जो दिया है ना, जो आपको वेबसाइट दी है, उसमें जाके आप सर्च करना तो आपको सारे पिक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, है ना. ये एक आपका प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट में दे रही हूँ आपको कि www.redDataBook जहाँ पे हमें आगे जो दिया है वेबसाइट पे दिया है, वो वेबसाइट आप खोल के देखना. और उसके पिक्चर है, उसके कौन कौन से एक्सटेंशन एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, उसके नाम आप लिखना. व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर में हम कितना पढ़े उसका हम हाईलाइट देख लेते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिसीवियर आर नेम्स गिवन टू द एरियाज meant for conservations and preservations of forest and wild animals. उसके बारे में हम पढ़े. Then biodiversity refers to the variety of living organism in a specific area. बायोडाइवर्सिटी ऐसी चीज़ है कि जो स्पेसिफिक एरिया जो उसके लिए कवर किया गया है ऑर्गेनिजम्स के लिए, वहाँ उसका नेचुरल हैबिटेट हम आर्टिफिशियल हैबिटेट बना सकते हैं. प्लांट्स हो या तो एनिमल्स हो, उसका हम आर्टिफिशियल जो हैबिटेट है वो वहाँ पे हम बना सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज द फ्लोरा एंड फोना दैट एरिया. फ्लोरा एंड फोना की डेफिनेशन हमने देखी. फ्लोरा मीन्स के एनिमल्स से रिलेटेड है, फोना मीन्स के प्लांट से रिलेटेड है ना. ये दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है, एग्ज़ाम में आ सकती है ये. देन हमने देखा एंडेमिक स्पेसीज आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया. एंडेमिक स्पेसीज ऐसी प्रजाति, ऐसे स्पेसीज के जो पर्टिकुलर एरिया में ही हमें देखने को मिलते हैं, सब जगह वो देखने को नहीं मिलते. जैसे कि हिमालय जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे हमें याक है, रेनडियर्स है, वो वहाँ पे ही हमें देखने को मिलते हैं. वो फिर गुजरात में आप ढूंढने जाओ तो वो हमें ऐसे एनिमल्स नहीं देखने को मिलेंगे. एनिमल्स में जैसे होता है वैसे प्लांट्स में भी होता है. बहुत सारे ऐसे एंडेमिक स्पेसीज ऑफ प्लांट्स है वो पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, है ना. सब जगह वो प्लांट नहीं होते हैं. देन एंडर्ड स्पेसीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. एंडर स्पेसीज ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स कि जिसकी स्ट्रेंथ कम हो रही, वो डेंजर पोजीशंस में है. देन रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडर स्पेसीज. तो ऐसी एक बुक है जिसका नाम है रेड डेटा बुक. यहाँ पे लिखा है द रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड of endangered species. Then migration is the phenomenon of movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year.
फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक ब्रीडिंग। एनिमल्स बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह आते हैं स्पेशल ब्रीडिंग के लिए, है ना, अपना जो वंश है वो आगे बढ़ाने के लिए। देन वी शुड हैव रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज एनर्जी एंड वाटर। हमें पेपर्स को रीयूज रिसाइकल करना चाहिए, ट्रीज बचेंगे, एनर्जी बचेगी। ओके। देन रिफॉरेस्टेशन इज द रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन, नए से हमें ट्रीज को ग्रो अप करना है, वो प्रोसेस हुई रिफॉरेस्टेशन। ओके, तो चैप्टर 7 कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट।